ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से, जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो, सब संबंधों से टूटा हुआ हो। तो शिव बाबा बोलছেন, एक बाबा दूसरा न कोई। এই স্থিতির অনুভব পেতে হলে কি করতে হবে? সারা দুনিয়ার সম্বন্ধীদের প্রতি সাক্ষী দ্রষ্টা হতে হবে, তাই না? বুদ্ধি যেন না চলে। प्रश्न, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? बाबा की कम्पिटिशन करते बोलेছেন, আর সেই কম্পিটিশনে কি করে आगे যেতে পারবো? उत्तर, तुम्हारी रेस है पास विथ ऑनर बनने की। तुम्हारी रेस है पास विथ ऑनर बनने की। पास विथ ऑनर काके बोला है? लास्ट समय যখন যাব ধর্মরাজ যেন স্যালুট করে, তাই না? সে যেন না আটকায়, যে দাঁড়াও, তোমার কষ্ট পেতে হবে, তোমার এখানে বাকি, এটা যেন না বলে। সব আগে থেকে হোমওয়ার্ক কমপ্লিট হয়ে গেছে, কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, নিউট্রাল হয়ে গেছে, তবে পাস উইথ অনার হব, তাই না? इस रेस का आधार है बुद्धि योग। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा, बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा, उतना पाप कटेंगे, उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी, एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ।
अभ्यास बढ़ाते जाओ, याद का ही रिकॉर्ड रखो, याद का ही রেকর্ড रखो। তো বাবা বলছেন পাস উইথ অনার হবার কম্পিটিশান চলছে, কে আগে পাস উইথ অনার হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এই কম্পিটিশনের আধার হলো বুদ্ধি, কতটা আমার বুদ্ধি কোথায় কানেক্টেড, দেহ আধারিত বস্তু ব্যক্তির সঙ্গে নাকি ভগবানের সঙ্গে, তাই না? তো বাবা বলছেন তার জন্যে যেহেতু সারা দিন দেহের ধান্দাধরির পিছনে লাগতে হয়, তো বাবা বলছেন কখন সময় আছে তাহলে नींद को जीतने वाले ना नींद से हारने वाले, সব জিতনে वाले তো বাবা বলছেন সেই সময়ে বসে বাবার ইয়াদ করো। তো গুড মর্নিং হয়ে গেল, রাতে বসে বাবাকে ইয়াদ করো, গুড নাইট হয়ে গেল, তো গুড মর্নিং আর গুড নাইট হয়ে গেল, তো গুড ডে হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে মধুবনে অমৃতবেলা তো সকালে হয়, রাতেও জ্ঞান যোগের ক্লাস হয়, তাই না? যোগের কমেন্ট্রি হয়, তারপরে চার ধামের সবাই গুড নাইট করতে যায়, যোগ করতে যায়, এই সিস্টেম বানানো যাতে যখন ঘুমাবো তখন যেই ভোরবেলায় মনে হবে বাপ দাদা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাক দিচ্ছে, তাই না? এসো লাইট হাউস ফরিস্তা হয়ে যাও, তাই না? তো এই দুটো বেলা বাবার ইয়াদ খুব জরুরি, এক অমৃত বেলা, এক রাতে, তবে বুদ্ধি যোগ কোথায় থাকবে? বাবার কাছে, তাই না? गीत न वो हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी, কত সুন্দর গান আছে না? যাই পরিস্থিতি আসুক বাবার হাত আর সাথ ছাড়া যাবে না, না উলফত মানে বাবার প্রতি মোহব্বত দিল থেকে বেরোবে। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, उल्फत कहा जाता है प्यार को, अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ, तुम बीके उनको दादा कहेंगे, ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो, ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, তাই না? যেখানে যাই ঝান্ডা দেখলে কি মনে হয়? বাবার বাড়ি, তাই না? কেউ দার্জিলিং ঘুরতে গেছে, কেউ শিলিগুড়ি, কেউ আর কোথায় অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা, সেখানেই কি করছে, কোথায় আমার বাবার ঝান্ডা আছে, তাই না? তো সারা দেশ বিদেশে এত বাচ্চা বাবা বলে ডাকবে, এক পরিবার বলে মনে করবে, এইরকম আর কোনো সংস্থা নেই। माताएं तो कुमारी नहीं हैं, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। तो কালকেই বাবা ক্লিয়ার করলো না, কুমার কুমারী মানা যে কু মানে খারাপটাকে মেরে ফেলেছে সে হলো কুমার কুমারী। তো বাবা অধর কুমার অধর কুমারীগুলোকেও ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারী নাম দিল, মানে আবার সেই ছোট্টবেলার কুমার কুমারী লাইফ শুরু হয়ে গেল, তাই না? एक बाप की बच्चियाँ हैं, ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है, ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का, शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म बतनवासी है,
अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। कुख वंशावली तो हो न सके। यह कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे कहलाते हो। তো আমরা কিভাবে পরিবার? মুখ বংশাবলী, তাই না? কেউ মুখের থেকে ব্রহ্মা মুখের থেকে জ্ঞান শুনলো, তার থেকে কেউ জ্ঞান শুনলো, तो সেইভাবে মুখ বংশাবলী। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। यह सब हैं ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वो है परम पिता परमात्मा रचता, তাই না? কি ওয়ান্ডারফুল! এত বড় পরিবার বাবার, অথচ সে হলো নিরাকার, সে হলো পরম ধাম নিবাসী, কিন্তু তার পরিবার সব নিচে। तो ईश्वर कौन है? वो है परम पिता परमात्मा रचता। किस चीज की रचना करते हैं? की रचना करें भगवान? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोत्र पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए, ऐसे थोड़े ही पाग रख देंगे। बाबा बोलছেন এমনি थोड़ी ना पाग, पाग माने मुकुट है ना, तो पागड़ी बोले ना, तो एमनी थोड़ी ना मुकुट रेखे देवे, योग्य तो बनाबे ना। तो बाबा कहते उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए, ऐसे थोड़े ही पाग रख देंगे, ताई ना? आगे तो बाबा योग्य बनाबे, एमनी थोड़ी ना पागड़ी दिए देवे माथाए। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं। कितने सेंटर्स है? पूछना चाहिए। आप हैं कौन? अपना परिचय दो। यह तो साफ है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ और शिव के पोत्र पोत्रियाँ हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। तो सारा देश विदेश सब राज्य सब प्रांतेर থেকে বাবা যোগ্য আত্মাগুলোকে তৈরি করছেন যে স্বর্গতে যাবার যোগ্য। আর আমাদের সে হলো प्यारा पिता बाबा, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझे एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी बात है। पूछो तो सही, तो यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदी गण में आता है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है, তাই না? বলে না ব্রহ্মার কাছে বিশাল গৌশালা হতো, ওই জন্যে রাজাগুলো কী করতো? ব্রাহ্মণগুলোকে গরু দান করতো, তাই না? আগেকার মন্দির ব্রাহ্মণ গুরুদের কাছে প্রচুর গরু থাকতো, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো আসলে গৌশালা ওটা থোড়ি না, গৌশালা তো সব বাবার বাচ্চাগুলো আছে না, এই জন্যে বলে শিব বাবার বাহন হলো নন্দী ভৃঙ্গি মানে গরু, তাই না? तो जरूर किसी तन में आया होगा, तो
तुम जानते हो यह गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवानों बाज, ज्ञान सागर, पतित पावन वो है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए, शरीर भी पराया है। তাই না? কাউকে যদি বলা হয় যেখানে নোংরা ফেলা হয় সেখানে গিয়ে বসো, ভালো লাগবে? কিন্তু শিব বাবাকে দেখো, যে সংসারের অনুভবই নয়, যার জন্যে বিকার বিকৃতি নোংরা, সেই বিকারী দুনিয়া, বিকারী শরীরে বাবাকে আসতে হয়, তাই না? যদি বাচ্চাটা কাদার মধ্যে পড়ে যায় তাহলে তো বাবা দেখবে না যে কাদা আছে না নোংরা আছে না কি আছে, ঝটপট ওর ভিতরে ঢুকে পড়বে, তাই না? বাঁচাতে হবে বাচ্চাকে। তো সেই রকম বাবাও কি করে, এত নোংরা বিকার বিকৃতির দুনিয়ার মধ্যেও বাবা চলে আসে, কেননা বাচ্চাগুলোকে তো उद्धार करते हैं। तो शरीर भी पराया, तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि देव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। तो महावीर के आछे जे मायार उपरे বিজয়ী হবে, ওই জন্যে মহাবীর হনুমানের দুটো নিশানি দেখানো হয়। এক হলো তার বুকে সদা রাম, মানে সবসময় পরমাত্মা তার হৃদয়ে। দুই হলো পাহাড় রূপী পরিস্থিতি তার কাছে তুলো। তিন হলো স্মাইলিং ফেস, তাই না? সবসময় হর্ষিত মুখ থাকে, কোনো কিছুতে মানে একরস স্থিতির প্রতীক। আর চৌথা হলো উড়তি কলা, সে কখনো হেঁটে হেঁটে পরিস্থিতি ক্রস করে না, সে কেমনভাবে করে, ফরিস্তা হয়, উড়তি কলাতে সে পরিস্থিতি পার করে, তাই না? মানে পরিস্থিতিকে পাত্তাই দেয় না, তাই না? পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিতই হয় না, तो से हलो महावीर। तो जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वो भी ब्रह्मा कुमारी है, यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग उल्फत उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो। तो अटैचमेंट कार संगे थाकबे, शिव बाबार संगे, बाद बाकी सबार संगे कर्मेर सम्पर्क थाकबे, ताई ना? किन्तु अटैचमेंट एक बाबा दूसरा ना कोई। और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो, वो एक है भगवान, परंतु जानते नहीं, जाने भी कैसे। जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध टूट गया। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वो है सुखदेव और तुम हो व्यास, তাই না? বাবা বলছেন আসল ঋষি মুনি তপস্বী সে তো হচ্ছে বাবার বাচ্চারা, তাই না? गीता में भी व्यास का नाम है ना, वो तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो, তাই না? ব্যাসদেব ঋষি খুব প্রসিদ্ধ না, যে মহাভারত রচনা করেছিল। তো বাবা বলছেন সেই ঋষি মুনি তপস্বী, তাই না, আসল মহাভারতের সাক্ষী দ্রষ্টা, তাই না, সে হলো বাবার বাচ্চাগুলো। तुम जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी,
झूठी और सच्ची गीता अभी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। बाबा बोलছেন এখন ঝুঠি গীতাও আছে আর বাবার দেওয়া সচ্চা গীতাও আছে, কিন্তু যখন বিনাশ হবে দুটোই বিনাশ হয়ে যাবে। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे, अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। उनको अपना बनाया है, गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रियाँ। वो तो सिर्फ पोत्रे हैं, अर्थात मिल्स हैं, पोत्रियाँ नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है, गाया जाता है। सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते नहीं। बाप कहते हैं, मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। तो बाबा सब কিছু ডিটেলসে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সত্যযুগে সূর্যবংশী দেবদেবী ঘরানা, ত্রেতা যুগে চন্দ্রবংশী দেবদেবীর ঘরানা, আর তারপরে শুরু হলো রাবণবংশী। तो बाबा बोलছেন प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदी बहती है। यहाँ तो घी मिलता ही नहीं। बोले ना রাম রাজ্যে কি ছিল, দুধ ঘির নদী বয়ে যেত। আর এখন তো আসল দুধও পাওয়া যায় না, আসল ঘিও পাওয়া যায় না, এক ফুটাও নেই, তাই না? তো চিন্তা করো কেমন সে দুনিয়া ছিল। यहाँ तो घी मिलता नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे यह पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। एक दिन इस भंबोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊँ तो ज़रूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। তো ভাড়া ঘর নেবার প্রথাও কে চালু করলো? নিজে শিব বাবা চালু করেছে, যে অন্যের বাড়ি ভাড়া করতে হবে, তাই না? কাজ করতে হবে। मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है यह कोई को भी पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे, তাই না? 84 জন্ম কাদের হবে? মাত্র 9,16,108, তাই না? এদেরই হবে শুধু 84 জন্ম। বাদ বাকি তো সেকেন্ড স্টেপ থেকে আসবে, তো ওদের তো 83 হয়ে গেল, তারপরে 82 হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন, अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने में आता हूँ। तो शिव बाबा এসছে কি করতে? নর্ক দুনিয়াকে স্বর্গ দুনিয়া বানাতে। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। সব আত্মাগুলোকে একসঙ্গে সতগুরু শিব বাবা সঙ্গে নিয়ে যাবে। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते
बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। बोले ना भगवान हलो अखंड ब्रह्म ज्योति, माना जार ज्योति कोनो दिन निभे जाए ना। वो स्टार है जो भ्रिकुटी के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंधा हुआ है। तो कत छोट्टो ज्योतिर्बिंदु आमी, আর তার মধ্যে 84 জন্মের रोल भरा আছে। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भल बताओ आत्मा में इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नोंधा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पाठ है, वो भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली अदली बदली नहीं हो सकती। जे जा पाठ पेয়েছে, আজকে যদি বলে আমার এই রোলটা পছন্দ না, আমি চেঞ্জ করে দেব, বাবা বলছে কিচ্ছু চেঞ্জ হবে না। যে যা রোল প্লে করছে আবার সেই রোল করতে হবে। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जानते हैं। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी, वो भी शूद्र से ব্রাহ্মণ बनी है, তাই না? তো এখন বাবার বাচ্চাগুলো সবাইকে চিনতে পেরেছে, ব্রহ্মাকে, বিষ্ণুকে, শঙ্করকে, তাই না? সরস্বতী, দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, সন্তোষী, শীতলা, সবাইকে এখন বাবার বাচ্চারা চিনে গেছে যে তারা কারা আছে, কোথায় আছে, কিভাবে আছে, তাই না? तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के ही साथ प्यार है। पक्का बाबार संगेई मोहब्बत आछे, नाकि दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा 10वां कत किछु आछे, नाकि एक बाबा दूसरा ना कोई। तो अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है, माया बिल्ली भी कम नहीं है। तो माया की करे एर काछे ओर काछे बुद्धि फासानोर काज करे, ताई ना? और बाबार बाच्चार काज हलो बुद्धि निউট্রাল रखा, कारोर संगे बुद्धि ना फासो। कर्तव्ये कोथाय केउ आंगुल तुलते पारबे ना, सब दिके कर्तव्य कर्म ठीक थाकबे, किन्तु बुद्धि फासबे ना, अटैचमेंट होबे ना, ताई ना? कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या होती है, इसीलिए तूफान लाती है। तो बाबा बोलছেন मायार खूब हिंसा হয় যে সব শিব বাবাকে ভালোবাসে, তাই না? ওই জন্যে দেখো ভক্তিতে ইয়াদগার দেখালো যে শিব বাবাকে ধরে বসে আছে মনসা। আগে আমার পরীক্ষা দাও, এমনি ছাড়বো না শিব বাবাকে। শিব বাবার কাছে গেলে আগে আমাকে ফেস করতে হবে। तुम चाहते हो, না হলে কি দরকার ছিল ভক্তি মার্গে শিবের চারিপাশে পঞ্চনাগেশ্বর দেওয়ার, তাই না? দেখো কত অ্যাকুরেট यादगार আছে না? तो तुम चाहते हो पौ बारा डाले चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है, তাই না? লুডো খেলেছে, ছয়ে চায় সবাই, কিন্তু কি হয়, 2 আসে, 1 আসে, 3 আসে। तो तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित
देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलोवेड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी। वे भी ऐसी राय देते होंगे। यह सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भल बच्चों आदि को संभालो परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। बाबा कल के बोलो ना বাচ্চাগুলোকে মারপিটও করা যাবে না, বকাঝকাও করা যাবে না। হ্যাঁ, খাবার বন্ধ করে দিতে পারো, যশোদা মাইয়ার মতন বেঁধে দিতে পারো, তাই না? অনেক কিছু করতে পারো, কিন্তু মারপিটও করা যাবে না, গালাগালিও দিতে পারবে না, তাই না? কেন? ওরাও শিখে, তাই না? আজকালের বাচ্চাগুলো খুব কপি করে, তাই না? तो समझो यह कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। বাবা বলছেন যে তুমি তো পরিস্থানে যাচ্ছ, তো তোমার সংস্কার, তোমার ভাষা, তোমার ব্যবহার তো পরীর মতন হওয়া চাই, তাই না? तो बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता हैं, वही पहले पहले पाट बजाने आते हैं। तो बाবার থেকে শুরুতে আমরাই বেরিয়ে গেছি পরমধাম থেকে। তাই জন্যে বাবা যখন দুনিয়াতে আসে তো সেই আত্মাগুলোর খোঁজ করে, যে কোথায় আছে তারা। সারা পৃথিবী থেকে বাবা সিলেক্ট করে করে নিজের বাচ্চাগুলোকে খুঁজে নেয়। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं मामेकम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चीता से उतर ज्ञान चीता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलोवेड बाप को याद करते हैं। বাবা বলছেন নিজের উপরে চেকিং করো যে আমি কতক্ষণ সারা দিন বাবার ইয়াদে থাকি। কত পার্সেন্টেজ হবে, কত পার্সেন্টেজ হবে? দেহধারীকে কত মনে করেন, ধান্দাধরীকে কত মনে করেন, আর শিব বাবাকে কত মনে করেন? কত পার্সেন্টেজ হবে? নিজেকে নিজে মার্কস দিন, তাই না? তাহলেই বুঝে যাব আমি কোন লেভেলে পুরুষার্থ করছি। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, তাই না? একবারেতে ভালো হচ্ছে না অমৃতবেলা, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, धीरे 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 पावर बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पाशवित अनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की, তাই না? কেন বাবা বলছে আমাকে ইয়াদ করো? বাবার কোনো প্রাপ্তি নেই। যখন বাবার ইয়াদে থাকবো তো ভুলভাল কম করব, আর যখন আমার দ্বারা ভুলভাল হবে না তখন শাস্তি পাবো না, জীবনটা সুখী হবে, তাই না? লাস্টের সময় ধর্মরাজ স্যালুট করবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে বাবার ইয়াদে থাকো। समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे, তাই না? যত বাবাকে ইয়াদ করব অত বুদ্ধি থেকে নোংরাগুলো বেরোবে আর ভালো হবে, বুদ্ধি শুদ্ধ হবে।
और फिर तुम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म राज्य करेंगे। তো যত বাবার ইয়াদে থাকবো অত বুদ্ধি শুদ্ধ হবে, অত সংস্কার ভালো তৈরি হবে, তো অটল অখণ্ড সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারবে। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते, राज्य करते, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती। अभी हम हैं राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है, बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में कभी थे, बाप ने तो स्वर्ग रचा है। তাই না? সব ধর্মপিতারা বলল যে ভগবান প্রথমে স্বর্গ রচনা করেছিল, পরে মানুষেরা তাকে নরক বানিয়ে দিল। তো বাবাও বলছেন আমি স্বর্গই রচনা করতে এসেছি আবার এই নরক দুনিয়াকে, তাই না? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, सबको प्राण दान देने वाले। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे, তাই না? তো ব্রহ্মা কুমার কুমারীর জ্ঞানে যদি কেউ চলে তো সে ডান্ডা খেয়ে খেয়ে যাবে না, পানিশমেন্ট খেয়ে যাবে না, সে ধর্মরাজের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে, তাই না? वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है, वहाँ रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है। তো সে দুনিয়া হবে রোনা প্রুফ, সেখানে কেউ দুঃখ ফিল করবে না। তো সংস্কার তো আগে থেকে তৈরি করতে হবে। তো দুঃখের ফিলিংস, কান্নাকাটির ফিলিংস বন্ধ হয়েছে, বিজয়ী হয়েছি না? এখনও কেউ অপমান করলে দুঃখ ফিল হয়, কান্নাকাটি আসে। তো এই সংস্কারের উপরে বিজয়ী হতে হবে, এই সংস্কার থাকলে চলবে না, তাই না? কি শ্রীকৃষ্ণ कैसे জন্ম लेते हैं, শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছেন না? কেউ ইনসাল্ট করুক, কেউ অপমান করুক, ওর কিছু চেঞ্জ হয় চেহারা? একরস স্থিতিতে থাকে। কে কত রকম বলে, মহাভারত দিত না আগে? তো কৃষ্ণের উপরে কে গালাগালি করে, কে ইনসাল্ট করে, কে অপমান করে, দুর্যোধন সে আরও কত কিছু, কেউ কত রকমের কমপ্লেন করে যে তুমি যদি ভগবান তুমি এই করো, তুমি সেই করো, তুমি অন্যায় করো, কত কিছু বলে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি কেমন থাকে? একরস স্থিতি থাকে, তাই না? তো ওই রকমভাবে বাবা বলছেন কৃষ্ণবংশী হবে, তো একরস স্থিতি চাই, তাই না? দুঃখ ফিল করব, প্রভাবিত হব, কান্নাকাটি আসছে। তো বাবা বলছে এখনো পাকা হয়নি, তাই না? একদম বিজলি চমক जाती है, তাই না? যখন কৃষ্ণ জন্ম হবে কি হবে? একদম চারিদিকে লাইটনিং হবে, বিজলি চমকাবে। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जर्जरी भूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापिस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते,
बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अकाले मृत्यु से बचने के लिए, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरा, दिल की उल्फत प्यार, दिल की उल्फत प्यार एक बाप से रखना है। दिल की उल्फत प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। वरदान। श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर। श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर। हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले। हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण, जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं। जी हजूर करते हैं। तो बच्चों का जी हजूर करना, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे, और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना, और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया, जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। सदा संपन्न हो जाएंगे। सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता, दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के
दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा, दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। तो बाबा बोलছেন দাতা বিধাতা বরদাতা সব কিছুর থেকে, তাই না, বাপ টিচার সতগুরুর থেকে যা প্রাপ্তি, সব প্রাপ্তিতে ভরপুর আত্মা কখন অনুভব করব? যখন বাবার প্রত্যেকটি শ্রীমৎ প্রমাণ জি হাজির করব। যেই আমি জি হাজির করলাম মানে হাজি করলাম, হজুরও হাজির হয়ে যাবে বরদান দিতে, শক্তি দিতে, তাই না? বাচ্চাই যদি সংকল্পের হিম্মত না করে তো বাবা কিসের বরদান দিতে আসবে, তাই না? এমনি গিয়ে বলে দিলে যে মাথার উপরে হাত রাখো, বরদান দিয়ে দাও, তথাস্তু দিয়ে দাও, ভগবানের সিস্টেম আলাদা। বলছে কর্ম করো, সংকল্প করো, কর্মে আগে পা ফেলো বাবার ইয়াদে, তো বাবা তথাস্তু করবে, তাই না? ওই জন্যে আগে হাজি করতে হবে, তাই না? তারপরে বাবার ইয়াদে করতে হবে, তবে বাবা বরদান দিতে হাজির হয়ে যাবে। স্লোগান, परमात्म बरसे के, परमात्म बरसे के अधिकारी बनकर रहो, परमात्म बरसे के अधिकारी बनकर रहो, तो अधीनता आ नहीं सकती, तो अधीनता आ नहीं सकती। তো বাবা বলছেন অধিকারী আত্মা সে কখনো কোনো কিছুর অধীনে থাকবে না, তাই না? যেরকম বাবা বলল না যে আজকে বুদ্ধিযোগ ভটকাবে না, এক বাবার সঙ্গে থাকবে, তার মানে বুদ্ধি কোথায় ভটকায়? বুদ্ধি অনেক জায়গায় ভটকায়। যেরকম ব্যক্তির ভালোবাসা চাই, তাই না, সম্মান, রেসপেক্ট, পোস্ট পজিশন চাই, ধন সম্পত্তি চাই, তাই না? তো বুদ্ধি কোথায় কোথায় চাইয়ের পিছনে দৌড়ায়, তাই না? তো বাবা বলছেন অধিকারী আত্মা নিজেকে ভরপুর আত্মা মনে করবে, যে আমার কাছে সব আছে, ভালোবাসা আছে, সম্মান আছে, নিজের সেলফ রেসপেক্ট আছে, সম্মান আছে, তাই না? আমার কারোর থেকে কিচ্ছু লাগবে না, কেউ ভালোবাসলো না বাসলো আমার জন্যে এক, কেউ সম্মান দিল না দিল আমার জন্যে এক, ধন অতিরিক্ত আসলো না আসলো আমার জন্যে এক, তাই না? তো ওই রকম স্থিতি মানে অধিকারী আত্মার স্থিতি, যে আমি ভরপুর আত্মা, আমার কাছে সব আছে, আমি কোথায় ভিখারি বুদ্ধি করতে যাব না, তাই না? যে ভিখারি বুদ্ধি করতে যাবে, চাই থাকবে, সে অধীন আত্মা, তাই না? যার থেকে চাই ওর পিছন পিছন ঘুরতে থাকবে, দাও ভালোবাসা দাও, আমাকে সম্মান দাও, আমাকে ইয়ে দাও, তো সে কি হয়ে গেল? বুদ্ধি অধীন হয়ে গেল, ভিখারি হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু যে সর্বপ্রাপ্তিতে নিজেকে ভরপুর অনুভব করবে সে হবে অধিকারী আত্মা। তো আজকে যাচাই করব যে সারা দিন অধিকারী আত্মা হয়ে থাকি নাকি অধীন আত্মা হয়ে ভিখারি বুদ্ধি করি। ও এই দিচ্ছে না, ও ভালোবেসে কথা বলে না, ও মিষ্টি ব্যবহার করে না, ও আমাকে সম্মান দেয় না,
তো এর পিছনে কি আছে? অধীনতা আছে, চাই চাই ভাব আছে, তাই না? তো অধিকারী হব, সর্বপ্রাপ্তির অধিকারী, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে।